So this is going to be a tarot guidance. We have already seen the overall message for Sumbul from her spirit guides for the coming year. तो ये वाला कार्ड अब यहाँ पे रखते हैं and let's see how this energy will break down for her coming years. Of course, energy can change. बहुत सारे लोग जो आप पूछते हो कि क्या एनर्जी बदलेगी, देखो गाइडेंस आया है तो देर आर बिग ह्यूज चांसेस ऑफ इट पैनिंग आउट, माने कि वो होगा ही. लेकिन if there is something that you don't want to have, you don't want it to happen, you can always take a corrective action, and that is the point of taking a tarot guidance. No, मान लीजिए कि tarot guidance के लिए आप जाते हैं और वहाँ पे एक challenging energy फ्यूचर में दिखाता है. अब उस चैलेंजिंग एनर्जी को आप चेंज ही नहीं कर सकते हो, तो फिर टैरो गाइडेंस लेने का फायदा क्या है, टैरो एडवाइस का फायदा क्या है? फायदा तो यही है ना कि जो फ्यूचर की अगर चैलेंजिंग एनर्जीज दिख रही है तो उसके लिए हम क्या करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, एंड अगर पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है तो हम क्या सही कर रहे हैं जो हमको करते रहना चाहिए. दिस इज वॉट इट इज ऑल अबाउट टैरो गाइडेंस. अगर हम फ्यूचर की एनर्जी चेंज नहीं कर सकते हैं, जो लिखा है वही होने वाला है, तो टैरो गाइडेंस का कोई खास मतलब नहीं रह जाता. और इसीलिए शायद बोलते भी हैं कि डेस्टिनी, यू राइट योर ओन डेस्टिनी. समझ में आया? तो यस, अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं तब तो वो एनर्जी डेफिनेटली पैन आउट हो जाएगी, चाहे तो वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो. कोई टैरो गाइडेंस के लिए आ रहा है, दिखा रहा है कि यस, if you do this, somebody is not getting a job. तो क्या करने से जॉब मिलेगा? पेशेंस रखने से जॉब मिलेगा, चेंज लाने से जॉब मिलेगा, नेटवर्किंग से जॉब मिलेगा, चेंज ऑफ प्लेस से जॉब मिलेगा, क्या चीज से जॉब मिलेगा? जो भी आपका एडवाइस है, अगर आप वो फॉलो करते हैं, देन यू कैन ट्वीक द फ्यूचर एनर्जी. And that is why Krishna in Bhagavad Gita says, कर्म करो, फल की चिंता मत करो. So karma is very important, which is a big part of my mentoring program that I'm launching in January, where you get the clarity to tarot guidance, and you get a big execution phase, the planning phase, where you put your karma out there. Okay, all right. तो चलिए हम देखते हैं. God's guardian angels, Archangel Michael, Spirit God, Spirit Guides. I think इसमें कोई reverse card नहीं है शायद, तो I'll just keep it this way. Thank you for the divine guidance and blessings coming for Sumbul for the coming 1 year. Thank you so very much. The Star card. Have faith that healing is in the forecast. Now, how synchronistic is this, guys? I started my first part of, as you know, this is the second part of Sumbul's birthday reading. The first part की reading ही मैंने अपने free healing session से start की थी, right? And free और healing का एक huge part था Sumbul के guidance में. Like this one, how to dissolve this judgment. It is possible only through healing, when you take a step towards healing. और अब जब हम उसके detail guidance, detail energy देख रहे हैं, तो what do we have? We have the Star card, but this is a different card, because यहाँ पे जो Star card है, more than wish fulfillment, it is a promise that whatever sorrow that you're going through, be sure that healing is around the corners. Okay, now is this reading, is this message of this card, is this tying in beautifully with the yesterday's message, जहां पे उसके कार्ड में क्या आया था कि while you are feeling sorrow, you are feeling hurt, you feel that something is slipping out of your hands, कुछ आपके हाथ से निकल रहा है, तुमको दुख लग रहा है, sorrow फील कर रही हो, but no, कि जो भी चीज तुम देख रही हो, जो कि तुमको बहुत दुख तकलीफ क्रिएट कर रहा है तुम्हारे में, it is more of a fluff overestimation than the reality. उसमें reality कम है और illusion ज़्यादा है. And even then with that 6 of cup का कार्ड, जो कि पास्ट का कार्ड होता है, वो क्या बता रहा है कि उसके लाइफ में एक हीलिंग आ रही है, पास्ट के कोई सिचुएशन में, रिलेशनशिप में हीलिंग आ रही है. और यहाँ पे यही चीज बताया जा रहा है कि The Star card is all about wish fulfillment, मगर यहाँ पे इसका मतलब चेंज है. It is a different deck, it is a new deck, it has a different meaning. Each deck comes with their own special specific meaning. And in this card,
This card is coming in Sumbul's life, sitting right there in the center of her birthday message. Answer to the sorrow that she is feeling. कल के रीडिंग में आपने देखा था ना, that she is feeling the sorrow, and this card is a promise of that Six of Cup future energy की healing आ रही है. Even though you are feeling the sorrow, healing is around the corner. Okay, so let's get started. There is this star card with the promise of healing. Nine of Wands in reverse. Okay. Eight of Pentacles in reverse. Okay, subconscious level पे past में क्या है? Nine of Pentacles है. Knight of Wands है. क्या सारे उल्टे हो गए हैं? Okay, let me, I don't know what to do. Ten of Wands है. Seven of Pentacles है. Knight of Sword है. Environment में hopes and fears में क्या है उसके? Two of Cups. Wow, this is hope. I think probably she is thinking about Fahman more. What else? Wow, beautiful strength card as the end of the reading. Back of the deck में हम देख लेंगे कि क्या है. King of Cups, Ace of Pentacles. Always compare yourself before giving a response. Always compose yourself before giving a response. All right. Okay. तो ये जो चीज़ है आप देख रहे हो ना, पास्ट में है. Always compose yourself before giving a response. ये मैसेज क्यों आया है at the back of the deck? You should try to understand this. क्यों? क्योंकि जब क्या होता है कि जब हम अंदर में काफ़ी कैकोफोनी में हैं, when we are torn inside, okay, when we are doing something that we don't want to do but we are forcefully doing it, तो हमारे में एक तरह का resentment होता है. There is a resentment within us when we are not being ourselves, when we are not being our authentic self. तो जब हम पीस में नहीं हैं, कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो हमें ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, इट इज़ नॉट इन सिंक विद आवर इनर वॉइस या विजडम, तो एक फ्रस्ट्रेशन सा रहता है, एक चिढ़ रहता है, और वो बेसिकली देयर इज समथिंग यू नो समथिंग बर्निंग विद इन विच वॉन्ट्स टू कम आउट, which wants to come out. तो क्या होता है कि वो हमारे आवाज से, हमारे रिएक्शन से, हमारे टोन से वो बाहर आता रहता है, क्योंकि हमने उसको दबा रखा है ना, तो वो भी इट मेक्स इट्स एफर्ट टू कम आउट थ्रू इट. और इसीलिए ये बेसिकली उसको क्या बोला गया है कि ऑलवेज कंपोज योर सेल्फ बिफोर गिविंग अ रिस्पॉन्स. तो अभी हम देख रहे हैं कि सुंबुल काफी थोड़ी सी सौरों में है, स्कैटर्ड एनर्जी भी है, शायद अंदर में भी एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, सॉरो है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, तो शैटर्ड थोड़ी सी एनर्जी है, तो अंदर का फ्रस्ट्रेशन बाहर आता रहता है. तो इसीलिए बेसिकली क्या है कि शी नीड्स टू मोस्टली फोकस ऑन हर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बाय कमिंग इन सिंक विथ हर इनर वॉइस, इनर विजडम, एंड टेक बोल्ड स्टेप्स फॉर दैट. आसान नहीं होगा, बोल्ड स्टेप्स लेने होंगे उसको, तब ये इनर कॉन्फ्लिक्ट डिसॉल्व होगा. जैसे बोलते हैं ना कि अगर दूसरे जज भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें लगता है कि हम सही हैं अंदर में, तो कहीं ना कहीं यू आर एट पीस, बट यू स्टार्ट लूजिंग टच विथ योर सेल्फ when you start walking the way others are showing you. जब आप दूसरों की राह पे चलने लगते हो, अपने आप से दूर चले जाते हो, दूर जाते रहते हो, और तब वो फ्रस्ट्रेशन बन जाता है अंदर में. तो इनर कॉन्फ्लिक्ट को, क्योंकि इनर कॉन्फ्लिक्ट भी है अभी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेज क्या है कि कंपोज हो जाओ, शांत हो जाओ, रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करने के पहले.
वो बैक ऑफ द डेक में एक मैसेज है उसके लिए, बट एनीवेज वी विल सी कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, हीलिंग आ रही है, ये हमको पता चल रहा है। और बैक ऑफ द सबकॉन्शियस लेवल में क्या है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है। Sorry, but fairies aren't going to come to do all the work for you. And how synchronistic this is once again, right? Subconscious level में क्या है कि वो चीज़ कुछ करना चाहती है, she wants to be her authentic self, लेकिन कोई चीज़ है, कोई मजबूरी है, कोई रीज़न है जिसके कारण she is not listening to her inner voice, or you can say that she is not being her true self. So there are torn part which is creating this internal conflict also. And yes, very beautifully said, वो चीज़ नहीं कर रही है जो कि वो उसको करना चाहिए। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज है कि फेरीज विल नॉट कम एंड डू थिंग्स फॉर यू, मी और इवन सुम्बुल। हर स्पिरिट गाइज, आवर स्पिरिट गाइज आर टू हेल्प अस, नॉट टू टेक एक्शन फॉर अस। एक्शन हमें ही लेने हैं क्योंकि ये हमारी लाइफ है, हमारे एक्सपीरियंसेस हैं। तो यहाँ पे सबकॉन्शियस लेवल में सुम्बुल को पता है कि उसे कुछ चीज करनी है। अगेन अगर आप देखो तो ये वही मैसेज रिपीट हो रहा है, यू आर नॉट लिसनिंग टू योर इनर वॉइस। इनर वॉइस को सुनते हुए आप अपने लाइफ में एक्शन लीजिए, बिकॉज योर फेरीज, योर स्पिरिट गाइड्स विल नॉट डू दैट फॉर यू सुम्बुल, एंड तुमको ही वो काम करना पड़ेगा। एंड दिस रिक्वायर्स यू टू बी बोल्ड। ठीक है, तो वही चीज है कि जो भी काम आपको करना है ना, वो तो आपको ही करना है और आपको बोल्डनेस चाहिए होगा उसके करने के लिए। तो ये वाला कार्ड हमने पहले ही पढ़ लिया है कि यस, यू विल हैव टू डू इट, योर फेरीज विल नॉट डू इट, इवन दो दे आर देयर फॉर यू टू सपोर्ट यू। इट्स योर लाइफ, इट्स योर लेसन्स, यू गॉट टू डू इट। सो सबकॉन्शियस लेवल में अगेन द सेम थिंग, वो जो चाहती है करना वो कर नहीं पा रही है, समथिंग नॉट हैपनिंग। सबकॉन्शियस लेवल में ये है। अब यहाँ पे देखेंगे जो हीलिंग की एनर्जी है उसको क्या क्रॉस कर रहा है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। इट वुड टेक अ हेल लॉट ऑफ मोर टू डिफीट यू। ओके, it will take a hell lot of more to defeat you. Now do you see this, that how beautiful again these two cards are overlapping onto each other, sitting right there in the center of Sambhu's reading. कितना conspicuous है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो स्टार कार्ड है ये हीलिंग की बात कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पे कुछ गिर सा भी गया है, no there is a water body. Okay, so this is depicting emotions, quite much into her emotions, also waiting for healing. Will this come or not? But a promise की healing आ रही है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को defeated भी feel कर रही है। Okay, and this is the message that is coming and telling her that don't give up, don't think that you have lost something, because कल की रीडिंग में हमने देखा कि कोई किसी चीज का इल्यूजन क्रिएट हुआ है। द डेविल इज क्रिएटिंग एन इल्यूजन, कोई चीज को बढ़ा चढ़ा के उसको पेश किया जा रहा है, एंड शी इज फीलिंग द सॉरो एंड शी फील्स दैट healing will not come and it is the end of the road. But here there is a promise not only of healing, but यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि it will take a lot more to defeat you. So don't see yourself as a defeated, that you have lost everything and feel so much of sorrow. इतना sorrow feel मत करो. Healing is coming and you cannot be defeated so easily. So even though you have to take actions which you are not taking, don't you see yourself as a loser or defeated. तो वो सारी एनर्जी आप जो देख सकते हो, डेविल के क्रिएट किए हुए इल्यूजन से एक सॉरो का आना और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट विद अपने इनर गाइडेंस का नहीं सुनना, एवरीथिंग इज काइंड ऑफ लिंकिंग अगेन एंड ऑल। तो वो चीजें हो रही हैं। और क्या हो रहा है यहाँ पे कॉन्शियस लेवल में, हाउ इज शी बिहेविंग, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। Sometimes you have to be willing to bend the rules a little. Okay. Bend the rules a bit. Like bold. Right? She is being asked to be bold, I think. I think उसका major card तो यही है कि she needs to be bold. Unless and until she
यू नो जो भी उसके लाइफ में रिक्वायर्ड है, यहाँ पे भी देखो उसको एक्शन रिक्वायर्ड है, नोबडी इज गोइंग टू डू फॉर हर, शी नोज इट दैट शी हैज टू डू इट. और यहाँ पे बोला जा रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, समटाइम्स यू हैव टू बेंड द रूल्स इन लाइफ, you know, like you have to be smart enough. You don't have to be this innocent gullible person who is always kind of doing the, you know, the good girl thing जो कि एक करना चाहिए. Sometimes you have to be, you know, doing things that you feel is right. Bend the rules. Bend the rules का मतलब क्या है? रूल्स क्या है? सोसाइटी ने रूल्स बनाए हुए हैं कि ये ऐसे होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए, एंड शी लाइक अ गुडी गुडी गर्ल फॉलोइंग द रूल्स. बट वो रूल फॉलो करने से उसके लाइफ में शी इज नॉट ओनली जजिंग हर सेल्फ, शी इज जजिंग एवरीबडी एंड एवरीवन एंड एवरी लाइफ सिचुएशन. सो यहाँ पे उसको बोला जा रहा है बी बोल्ड एंड बी बेंड द रूल्स. ओके, ऑल राइट. यहाँ पे अगर हम देखें तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. Pause and savor the results of your success. Again this makes very sense क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सुम्बुल का रीडिंग किया हुआ था उसमें 9 ऑफ पेंटिकल्स की प्रेजेंट एनर्जी उसकी दिखाई थी. तो अगर ये आने वाले 1 साल का रीडिंग है जैसा हम कर रहे हैं, सो दिस इज द पास्ट एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि अभी की एनर्जी दिखा रहा है. जो अभी उसका 9 ऑफ पेंटिकल्स जो शायद वो जो सीरियल सक्सेस हुआ है या फिर सीरियल अच्छा जा रहा है तो वो उसका ही कॉन्फिडेंट एनर्जी है. ओके, तो दिस इज यहाँ क्योंकि ये आने वाले 1 साल की रीडिंग है तो ये अभी जो उसकी प्रेजेंट एनर्जी है यहाँ पे पास्ट में दिखा रहा है, बिकॉज दिस इज 1 ईयर रीडिंग, राइट. तो दिस इज द पास्ट रीडिंग, पास्ट एनर्जी विच इज काइंड ऑफ अ प्रेजेंट एनर्जी. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन. बट अगेन इसके साथ साथ एक she is having success also, okay, she is enjoying the success, but at the same time do you see a contrasting energy here? Okay, so just pay attention to this. यहाँ पे आप देख रहे हो कि 9 of Pentacles. Now see, I hope you understand, this is 1 year का reading. तो अभी की जो present energy 9 of Pentacles की है, जो कि करियर में शायद उसको बहुत अच्छा चल रही है, she has overcome all the low self esteem and she is very confident, वो इसमें पास्ट में दिखा रहा है. क्यों? क्योंकि ये 1 साल का रीडिंग है, बट अभी उसकी एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स की है, करियर में उसका सब चीज ठीक चल रहा है. एंड येट इफ यू सी कि यहाँ पे जो रीडिंग दिखा रहा है उसका करियर में हर चीज अच्छा चलने के बावजूद एक सेंटर की जो रीडिंग है, सेंटर की जो एनर्जी क्या है, स्टार का रीडिंग है. नाउ स्टार इज अबाउट विश फुलफिलमेंट, बट इन दिस पर्टिकुलर डेक दिस इज मोर ऑफ अबाउट हीलिंग, एंड दिस अगेन लिंक्स वेरी ब्यूटिफुली विद द yesterday का रीडिंग जहां पे आपने देखा कि she feels that sorrow, devil का illusion, something is going out of her hands and all that. So yeah, ये चीज है. She needs to be bold, she has to do her thing, nobody. ये देखो बहुत सही बात है यहाँ पे है ना कि fairies will not do the things for you. You आपको ही, सुम्बुल को ही बोल्ड होके वो चीजें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा. एंड वॉट एवर यहाँ पे भी बेंड द रूल बोला गया, तो सुम्बुल रियली नीड्स टू गेट एडवेंचरस, और रादर मोर देन एडवेंचरस शी नीड्स टू जस्ट लिसन टू हर इनर वॉइस एंड टेक सम बोल्ड स्टेप्स. ओके, अगर हम यहाँ पे एटीट्यूड देखें तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, नेचर, नर्चर what you have and see how it grows and grows. Yeah, more like, you know, feeling a little disinterested in what she is having right now. So थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी क्या कर रही है वो बिल्कुल वही तो है ना. देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नर्चर व्हाट यू हैव, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अनकंडीशनल लव के लिए उसको बोला जा रहा है. नाउ अगेन दीज टू कार्ड्स आर द सेम थिंग. ये ओवरऑल एनर्जी जो ओरेकल की है, यहाँ पे टैरो की है, द सेम थिंग. यहाँ पे वो क्या कर रही है, वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण ना ही वो दूसरों को जज कर रही है, अपने हर एक लाइफ सिचुएशन को जज कर रही है, अपने आप को भी जज कर रही है. एंड इंटरेस्टिंग एंड ऑब्वियसली जब आप अपने आप को जज करते हैं तो देन यू विल जज एवरीबडी. ओके, तो यहाँ पे वो जज कर रही है, तो यहाँ पे उसका एटीट्यूड क्या बोला जा रहा है कि तुम नॉट ओनली शुड यू टू एक्सेप्ट अदर्स एंड टू एक्सेप्ट योर लाइफ सिचुएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. शी विल हैव टू एक्सेप्ट हर सेल्फ.
She has to get in touch with her inner voice and accept life situation as it